My channel Simplified Maths. दोस्तों, we are continuing with chapter 3, that is matrices part 3. Okay. In the last lecture, we have done exercise 3.1 and also we have done just one theory topic after 3.1, and which was matrix addition. Now today we are going further, properties of the matrix addition. In fact, the matrix addition is also very simple. You know, whenever you want to add the two matrices, both the matrices must be of the same order. दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी आप एडिशन कर सकते हो. एंड व्हेन यू आर एडिंग, व्हाट टू डू? एडिंग द corresponding elements. Like that we have learned in the last lecture. Now there are certain properties of the matrix addition which are very simple, in fact, which we are studying since long in the set theory and all. Okay, commutative property, associative property, like that. Everything is same, no change, just a notation change. Okay, so I'm not taking much time in this. Like commutative property for addition. Okay, commutative property for addition. Now, you know, for set theory, for union, you know, A union B is equal to B union A. A intersection B is equal to B intersection A. That is commutative law. So just like that, commutative properties for any two matrices of the type M cross N. Okay, for any matrices A is equal to suppose Aij, ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, मैंने लास्ट टाइम समझाया था, Aij M cross N. Okay, and the second matrix, instead of Aij, आप नोटेशन में Bij लिख दो और ऑर्डर सेम. Why same order? Because we are doing addition, right? So for these two matrices, what is the commutative property? So commutative property is just simple as that A plus B is equal to B plus A. This is called a commutative property. Okay, जैसे A union B equals to B union A, A intersection B is equal to B intersection A, just like that. इसमें भी एडिशन कोई भी ऑर्डर में करोगे, आंसर रिमेन सेम. दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एंड नंबर 2 इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ, व्हाटएवर यू वांट टू से. ओके, एसोसिएटिव, either you say property or you say law. Okay, now what was that associative? आप यूनियन में इंटरसेक्शन में याद करो तो just like this. I'm not writing now this. Now in that case there will be three matrices. How many? There will be three matrices, A, B and C. So A plus B bracket plus C is equal to A plus B plus C. This is called associative law. Okay, जैसे यूनियन में क्या होता था, A union B bracket union C is equal to A union bracket B union C, और इंटरसेक्शन में भी ऐसे ही होता था, isn't it? Okay, so this is associative law. I'm not going much in detail in this, right? उसके बाद third and fourth properties are also easy but bit important than first two. Okay, that is existence of additive identity. Existence of additive identity. Okay, additive identity. Now just dear children, आप याद करो कि अगर आप when you are talking about the real numbers, now what is the additive inverse of any real number? You know, suppose for example additive inverse of 3, then it will be -3. Additive inverse of -5, then it is +5. You just have to change the sign, that's all, isn't it? वो हमने पढ़ा है ना, आप प्राइमरी में भी पढ़ते थे. Since primary we are studying this additive, okay, identity, isn't it? Okay, now okay, sorry dear children, मैंने additive inverse का बोल दिया, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी का इनवर्स कर देता हूँ.
एक्सट्रीमली सॉरी, अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया ना वो इनवर्स के लिए एक्सप्लेन किया, एडिटिव इनवर्स, सॉरी, हाँ, वंस अगेन, नॉट फॉर आइडेंटिटी बट फॉर इनवर्स। जैसे मैंने बोला ना कि भाई थ्री का क्या होता है एडिटिव इनवर्स, -3, 5 then -5, -7 then +7, additive inverse. Okay, why it is so? Because if you add them you get 0. what 0 क्या होता है, वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एक्चुअली 0 था, मैंने गलती से इनवर्स का एक्सप्लेन किया, so that's no problem. Existence of additive inverse is what? Just for example, for any matrix, okay, A is equal to Aij of the order m cross n. Okay, additive inverse will be -a. additive inverse क्या होगा, -a, बस दैट्स ऑल। जैसे 3 का -3 करते हो, -7 का +7 करते हो, वैसे a है तो -a कर दो। -a मीन्स पूरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जो है उसके आगे नेगेटिव मतलब साइन चेंज कर दो। सो -aij m cross n, okay, is an additive inverse, is an additive inverse, ठीक है, additive inverse. Now I think example is required for this. Very simple, just for example, suppose मैंने लिया a, right? तो suppose it is say 5 -2 0 and 1, तो इसका what will be additive inverse क्या होगा, -a, -a करोगे तो क्या कर दोगे आप, -5 +2, 0 will remain 0 only, and +1 become -1. Clear? This is called an additive inverse. ठीक है, ये हो गया additive inverse, ठीक है, of A. अच्छा, now what's your observation? हाँ दोस्तों, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, इन दोनों का एडिशन करो तो, इन दोनों का एडिशन करो तो क्या आपका ऑब्जर्वेशन है, अगर आप इनका एडिशन करोगे a प्लस माइनस a करो, very important note that if you take a plus minus a, तो क्या होने वाला है बोलो, 5 minus 5 0, -2 plus 0 0 plus 0 1 minus 1 0, everything will be 0 only. Okay, और means 0 0 0 0, मतलब क्या हो गया ये अल्टीमेटली, ये हो गया जीरो मैट्रिक्स जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, isn't it, right? और उसको आप नोटेशन वाइज आइदर कैपिटल O और ब्रैकेट में U0 लिख दो, बराबर, या तो कैपिटल O, बट बी केयरफुल, हमारे हैंड राइटिंग ऐसे होते हैं कि हमारा 0 और कैपिटल O सब सेम ही दिखता है, इसलिए आई यूजुअली अवॉइड राइटिंग कैपिटल O. टेक्स्ट बुक कैन राइट बिकॉज उन लोगों का प्रिंटिंग फॉन्ट जो है पूरा डिफरेंट होता है, तो you can identify what is O and what is 0, but when we are writing sometimes according to our handwriting it looks same only, बराबर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है दोस्तों कि मैट्रिक्स में एडिशन कभी भी 0 नहीं होता। 0 अगर किसी ने आपको बोला कि a प्लस माइनस a, व्हाट इज द आंसर, और अगर आपने बोल दिया सर 0, देन यू विल ऑल्सो गेट 0 मार्क्स। 0 आंसर होता ही नहीं है, 0 मैट्रिक्स होता है। अगर आपने मैट्रिक्स नहीं बोला देन योर आंसर इज रॉन्ग। 0 and 0 matrix is a totally different things, north south है। 0 means it's simply a zero real number, और 0 matrix वो तो कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, 2x2 2x3, वो 0 मैट्रिक्स है, बराबर है। ओके, तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करो तो कभी भी आंसर 0 मत देना, याद रखो 0 नहीं देना है आपको, आंसर देना है इट विल बी अ 0 मैट्रिक्स, बी केयरफुल। ओके, इज दैट क्लियर, राइट? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान में रखना ही कि भाई कभी दो इनवर्स का एडिशन करो 0 मैट्रिक्स ही होता है।
क्लियर? ओके, नाउ द फोर्थ वन, एक्चुअली जो मुझे थर्ड लेना था वो अभी मैं फोर्थ ले रहा हूं, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. Existence of additive identity. That's the fourth one. Existence of additive identity. Now again we have to remember दोस्तों real numbers. आप कभी भी कोई भी प्रॉपर्टीज समझना चाहो ना तो देन ऑलवेज थिंक ऑफ द रियल नंबर और नेचुरल नंबर्स, बट मोस्ट प्रोबेबली थिंक ऑफ द रियल नंबर्स. ओके, नाउ इन द रियल नंबर्स यू नो कि what is additive identity for real numbers? Simply 0, because you know that 5 plus 0 equals to 5, minus 10 plus 0 equals to minus 10. मतलब 0 आप किसी में भी ऐड करो तो आंसर you get the same real number in with which you are adding 0. मतलब 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ऐसे मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा है? मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स. फॉर एनी मैट्रिक्स A is equal to Aij M cross N. ठीक है? जीरो मैट्रिक्स, अभी कभी भी मैंने अभी भी बोला जीरो कभी नहीं बोलोगे. जीरो मैट्रिक्स दैट इज आइदर कैपिटल O, देखो ऐसे लिखोगे तो भी थोड़ा पता चलेगा कि कैपिटल O है, कैपिटल O, और ये नोटेशन मेरे ख्याल से ज्यादा हमारे लिए अच्छा है. जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव, व्हाट विल से, एडिटिव आइडेंटिटी, is an additive identity. क्या रीजन है इसका? बिकॉज द रीजन इज अगर आप A प्लस O करोगे या अगर आप O प्लस A करोगे तो आपका आंसर A ही रहने वाला है. वेरी सिंपल, isn't it? Okay, right? So either you write O notation और ये जीरो मैट्रिक्स. अभी मैं थोड़ा सा बड़ा ये सर्कल इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाए. अगर आप एग्जाम में ऐसे करोगे then it will be definitely considered as O, but be careful, अगर आप जीरो और O सब सेम ही करोगे जल्दी में फटाफट पेपर खत्म करने के चक्कर में, तो फिर वो जीरो ही कंसिडर होगा और आपके मार्क्स कट होंगे ही होंगे. पक्की बात है, ध्यान में रखना है. ठीक है? ओके, सो नाउ ये हो गया एडिटिव identity. So these are the four properties for the matrix we say addition, right? Now the next operation, there are different operations, we say operations, addition, then multiplication is also there. The multiplication, there are two types of multiplication. Okay, first is scalar multiplication. The first is, if you have a textbook, page number 66, okay, पेज नंबर 66 देखो आप, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर. इफ यू सी देयर, multiplication I change the pen, multiplication, okay, of a matrix by a scalar. What do you mean by scalar? Scalar means a real number. ओके, स्केलर का मतलब होता है दोस्तों रियल नंबर. ठीक है, स्केलर मींस रियल नंबर. रियल नंबर के लिए मैथमेटिकली वर्ड यूज होता है स्केलर. ओके, अच्छा, अब इसमें देखो किस तरह से होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन. इफ जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी मैं इसमें एग्जांपल से समझा देता हूं कि सपोज आपके पास मैट्रिक्स इस तरह से है कोई, just for instance, just say A, B, C,
DEF. ओके, अब सपोज मैंने ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लिया, राइट, देन इफ आई multiply it by k, if k is a scalar, स्केलर का मतलब क्या हो गया, अभी अभी मैंने बोला स्केलर मीन्स रियल नंबर, ठीक है, क्या होगा, रियल नंबर, दैट्स अ स्केलर, राइट। इफ k is a scalar, then if I take ka, अगर मैंने ka मतलब इसको अगर मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो you have to multiply this scalar with each and every element of the matrix, मतलब ka, kb, kc, kd, ke, kf, like this. Okay, this is called a scalar multiplication. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसको लाइटली मत लेना, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें इसका यूज कैसे होगा मैं आपको बताऊं। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, आई मल्टीप्लाइड विथ के, so k multiplied with each and every element in the matrix, but when we are doing the problems, when we are doing the sums, the same property will be used but in the reverse way. Reverse way means what, you know, मोस्टली मल्टीप्लाई करने का कम होगा, कॉमन निकालने का ज्यादा आएगा। ओके, कॉमन निकालने का मतलब कैसे, जस्ट फॉर एग्जांपल, हाँ, सपोज कि भाई एक कोई मैट्रिक्स मैंने लिया, देखो ध्यान से देखना, हाँ, कि मैट्रिक्स इज लाइक दिस, से 6 minus 9 12 18 0 एंड -3। ओके, ये मैंने मैट्रिक्स लिया, अब ध्यान से देखो, इज देयर एनी नंबर कॉमन इन ऑल दिस, जीरो इज देयर, सो डोंट वरी, जीरो में से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो तो सब में 3 कॉमन निकल रहा है, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 6 जा, है कि नहीं, राइट। तो मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, दिस इज द यूज ऑफ दिस स्केलर मल्टीप्लीकेशन। उल्टा, मैंने उल्टा एग्जाम्पल दिया, ऊपर मैंने क्या किया, के मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ, 3 कॉमन, ठीक है, तो 3 कॉमन निकाल दिया, तो 3 2 जा 6 -3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 0 -1, okay, right, so I can say this is as 3 and you can give this another name of this matrix, उसको आप कुछ भी बोल सकते हो, b बोल दो, बिकॉज ऑब्वियसली ए और बी डिफरेंट तो है ही, 3 कॉमन निकाल दिया, तो ऐसा मत समझना कि ये और ये दोनों सेम है, 3 आउट, सो द रिमेनिंग मैट्रिक्स यू कांट से ए, उसको बी नाम दे दो या ए डैश, यू कैन, बट डैश विल बी अनदर सिंबल गोइंग टू कम, ओके, सो मैं डैश नहीं यूज करूंगा, बी सी कोई भी नंबर यू कैन गिव, कोई भी नहीं। सो इज दैट क्लियर, जैसे मैंने 3 कॉमन निकाला ना, ऐसे ही आप -3 भी कॉमन निकाल सकते हो दोस्तों, ओके, यू कैन टेक -3 ऑल्सो कॉमन। अगर मैंने -3 निकाला होता तो यहाँ पे सारी साइन चेंज हो जाती, सिंपल, isn't it? So this is what is a multiplication of a matrix by a scalar, okay, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अभी आप देखोगे तो उसकी भी थोड़ी प्रॉपर्टीज दी हुई है, ओके, नाउ दैट प्रॉपर्टीज इज देयर ऑन द पेज नंबर 69, इफ यू सी द प्रॉपर्टीज आर देयर ऑन द पेज नंबर 69, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। टेक्स्ट बुक सब अपने पास रखेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, मजा भी आएगा समझने में, ठीक है। Everybody keep your textbook open, page number 69. Again you see there are 3 properties given, properties of the scalar multiplication of a matrix, ठीक है,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, एक्चुअली वो लिखना नहीं लिखे तो चलता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स. Now see what are the properties there. The first property there is, now if you see the properties are given like this: k into any two matrix are there, a plus b, a plus b. Then the property says that it goes like the simple opening of the bracket. क्या करोगे आप? k will be multiplied with both ka plus kb. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. मैं इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूं. अगर a प्लस बी है, आप इफ यू मल्टीप्लाई विथ k, तो k दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, और यू कैन टेक द वाइस वर्सा, मीन्स आप k कॉमन भी निकाल सकते हो. सेकंड प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे उसकी, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज लाइक से k प्लस एल इंटू ए. अभी दो स्केलर लिए उन लोगों ने, ऐसे k plus l into a, k and l both are scalar, then open the bracket, just simple. तो क्या होगा? ka plus la. यहाँ पे k and l both are scalars. यहाँ पर k स्केलर है, फर्स्ट वन में क्या है? k स्केलर, ठीक है, राइट. इसमें दो स्केलर है. Isn't it clear or not? Right. So these are the, say, two properties, and which is the third one? I think the third property is no, by mistake they have given. See, आपको मैं टेक्स्ट बुक में बताता हूँ उन लोगों ने क्या किया हुआ है. जस्ट ऑल ऑफ यू सी इन द टेक्स्ट बुक. देखो, hope you can see this now. हाँ, ओके. सी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? k into a plus b is equal to k plus kb. Second property, k plus l into a is equal to ka plus la. बराबर. These are the two properties. अभी यहाँ पे बाय मिस्टेक उन लोगों ने सेकंड और थर्ड किया है, बट इनफैक्ट दिस टू आर द प्रूफ्स गिवन. सो ये फर्स्ट की प्रूफ है, ये सेकंड की प्रूफ है, ध्यान में रखना है, ठीक है. ये सेकंड और थर्ड नहीं है, ध्यान में रखना है. क्या ये जो है वो, इट्स अ प्रूफ ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ द सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो ये 2 नहीं है, ये क्या है? 1 है. ये 3 नहीं है, ये क्या है? 2 है, ठीक है. प्रूफ्स, देयर आर प्रूफ्स 1 and 2. ओके, क्लियर. सो आप उस थोड़ा सा वो करेक्शन टेक्स्ट बुक में कर लेना, ठीक है दोस्तों. राइट. नाउ based on this, that is addition of the matrix and the scalar multiplication, and then next will be next topic which is going to come is the, in fact, the multiplication of the matrices, two matrices ka multiplication. Before I go for that, because that matrix multiplication is extremely important topic of this chapter, so what I am going to do, dear students, आप डायरेक्टली आ जाओ पेज नंबर 80. ओके, पेज नंबर 80, एक्सरसाइज 3.2. एक्सरसाइज 3.2. एवरीबॉडी कीप योर टेक्स्ट बुक ओपन. ओके, एक्सरसाइज 3.2, पेज नंबर 80, पेज 80 टेक्स्ट बुक का, ठीक है. राइट. नाउ एक्सेप्ट, आप मैं जो बोल रहा हूं आप ध्यान से सुन लेना. एक्सेप्ट द सम नंबर 3. आप टेक्स्ट बुक में ध्यान रखना, सम नंबर 3 को छोड़ के फ्रॉम सम नंबर 1 अप टू सम नंबर 12. ओके, 1 to 12 पूरा
ये दो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है, आपको खाली 3 नंबर का सम छोड़ देना है, बाकी सारे के सारे। ओके, राइट। 3 is a matrix multiplication which we will do the next lecture। ठीक है, 1 to 12 तक में only and only property of the matrix addition and the scalar multiplication is there। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, सम नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका, उसमें भी मैं आपको बता दूं, देयर आर 5 क्वेश्चन आज, उसमें से आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर सकते हो, फोर्थ और फिफ्थ कर पाओगे क्योंकि उसमें ए बी और बी है। आई जस्ट शो यू हियर, सी। ठीक है, होप यू कैन सी दिस और नॉट, राइट। सी, ये फोर्थ है, ए बी मतलब मल्टीप्लीकेशन, बी ए मतलब ये दो अभी नहीं कर पाओगे आप, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। तो ये वाला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, बाय द टाइम वी आर डिस्कसिंग द सम अप टू नंबर 12। ठीक है, अब उसमें से मैं कोई कोई सम देखो ले रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू डू ईच एंड एवरी सम इन डिस्कशन। सपोज क्वेश्चन नंबर 2, सी इन योर टेक्स्ट बुक, compute the following, in which I am doing the second one। okay, the question asked is the compute मतलब एडिशन मल्टीप्लीकेशन जो भी है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका, उसमें इस तरह से आपको मैट्रिक्स दिया है, देखो ध्यान से। द फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लाइक दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फर्स्ट रो। second row is a square plus c square, a square plus c square and a square plus b square। ठीक है, this is the first matrix। then plus यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में जो एलिमेंट दिए हुए हैं, that you see 2ab 2bc first row, 2ab 2bc, then minus 2ac minus 2ab, minus 2ac minus 2ab। ओके, अब इसका हमको क्या करना है दोस्तों, एडिशन, राइट। अभी एडिशन करोगे तो यू नो corresponding elements, so a square plus b square plus 2ab, that will be the first, a square plus, तो ये 2ab तो मिडल टर्म हो ना, ऑल ऑफ यू नो द फैक्टराइजेशन एंड एक्सपांशन। ओके, तो इसको मिडल टर्म कंसीडर कर लो, a square plus 2ab plus b square, फिर b square plus 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये 2bc मिडल टर्म, यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर सॉरी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो क्या फायदा हुआ इससे, ये ऑल दिस 4 टर्म्स इन द मैट्रिक्स दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स। याद है ना, परफेक्ट स्क्वायर्स। ये क्या हो गया हमारा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, b प्लस सी होल स्क्वायर, a माइनस सी होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर। ओके, so this is the answer, right? So hope you understand this thing। तो इस तरह से एडिशन जो भी है वो आपको करना होगा दोस्तों। ठीक है ना, राइट। अभी उसमें आप देखो फोर्थ वन में खाली यहाँ पे मैट्रिक्स लिखूंगा, आप आंसर ओरली बता सकोगे। cos square x sin square x, cos square x sin square x, first row, then second row is sin square x cos square x, sin square x cos square x प्लस। ओके, यहाँ पे फिर से आप देखो sin square x cos square x, sin square x cos square x, और सेकंड रो है cos square x sin square x।
सी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होता है। अब आपको 10th स्टैंडर्ड का नॉलेज भी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, राइट। अभी मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, है ना। इज इट क्लियर? ओके, तो बस ये हो गया हमारा आंसर, राइट। अच्छा, सपोज है 1 मार्कर में आया है ना, तो दोस्तों याद रखना, मैंने जैसे डायरेक्ट लिखा ऐसे मत लिखना, पहले एडिशन बताओ और फिर आंसर लिखो, तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। ऑब्जेक्टिव में ये जरूरी है। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ कि आपने लास्ट टाइम 11 की बहुत सारी यूनिट टेस्ट में ऐसा किया था कि ऑब्जेक्टिव में भी खाली आंसर लिखे थे, हाँ, विच इज नॉट एट ऑल परमिसिबल, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। नाउ I will take just see fifth sum ले रहा हूँ अभी मैं। Now I am taking sum number 5, ठीक है। All of you will see sum number 5। फिफ्थ सम में आपको देखो दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, A इज इक्वल टू मैट्रिसेस A इज इक्वल टू 2/3 1 5/3 2/3 1 5/3, then 1/3 2/3 4/3 1/3 2/3 4/3, okay, 7/3 2 2/3 7/3 2 2/3। ये है मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B गिवन, ओके। तो मैट्रिक्स B में दिया हुआ है 2/5 3/5 1 2/5 3/5 1। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू में आते हैं, है बहुत ही सिंपल, लेकिन फिर भी ये सब देखने में और फटाफट ओरली करने में कभी कभी हम गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। सेकंड रो में आएगा 1/5 2/5 4/5 2/5 4/5, ठीक है। then 7/5 6/5 2/5 7/5 6/5 2/5, okay, right. Now the question asked me is compute 3a minus 5b 3a minus 5b, ओके। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, राइट। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अभी हमने देखा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 विथ ईच एंड एवरी, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 3 देयर इज द डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल आउट, तो ये बन जाएगा 2, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 5, ठीक है, 1 2 4, उसके बाद ये हो गया 7 2 3 जा 6 और ये 2, ठीक है। फिर माइनस, अच्छा -5 भी होता है ना, तो क्या करते हैं पता है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में एडिशन है, मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन डिफाइन नहीं किया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये कि मैट्रिक्स एडिशन इज देयर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज देयर, मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन नॉट डिफाइन, मतलब डिफाइन नहीं किया हुआ, फिर भी सब्ट्रैक्शन होता है। तो जब भी सब्ट्रैक्शन आएगा तो हम माइनस के बदले प्लस करके -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या करोगे आप, मतलब करना एडिशन ही होगा, भले सब्ट्रैक्शन दिया हो, आप प्लस करके अंदर माइनस ले लो, ठीक है, राइट। तो क्या हो जाएगा, माइनस, अभी साइन चेंज बिकॉज आई एम मल्टीप्लाइंग विथ -5, सो -2 -3, इसको -5 से मतलब -5, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से 5 कट हो जाएगा, सो -1 -2 -4,
फिर ये -7 -6 -2. Okay, and now addition. Simple. So addition करोगे तो क्या आएगा? तो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0. See, so this is the answer. So finally you can say it's a O. Okay, answer is O. Either you say O or in short you can write a zero matrix. ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर होगा. ठीक है, so hope you understand this thing दोस्तों, right? Okay. अभी this way you can try each and every sum. अभी आप देखो मैं 7 सम ट्राई कर रहा हूँ, रिमेनिंग आपको अभी समझ पे आएगा कि कैसे करना है. In the 7th sum, the question asked is like this: find x and y. ये देखो आप ध्यान से कि कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल x and कैपिटल y. See in the textbook. So these are not the real numbers. Capital X means it's a matrix. Capital Y is another matrix. जैसे यहाँ पर A B यूज किया ना, A B मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैट्रिक्स को नोटेशन में आप कोई भी कैपिटल अल्फाबेट यूज कर सकते हो. ठीक है, राइट, क्लियर. तो मतलब हमको दो मैट्रिक्स ऑब्टेन करने हैं. We have to obtain two matrices X and Y. These are not two real numbers. Okay, where हाँ इफ करके आपको दिया है, दो क्वेश्चन दिए हुए, उसमें से मैं सेकंड वाला ले रहा हूँ, उसका सेकंड नंबर. अब देखो उसमें जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, ऐसे सॉल्व करना होगा. इसको यूं दिया हुआ है 2x + 3y इज इक्वल टू करके यू मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 0, 2 3 4 0. इसको हम देंगे नंबर 1. और सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y, 3x + 2y. ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा? देखो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 सॉरी 2 - 2 -1 5. इसको हम नंबर 2 बोलेंगे. अभी लीनियर इक्वेशन याद करो तो हमारा 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में ऐसे स्मॉल x स्मॉल y है तो आप कैसे करते थे, याद है? जस्ट सेम वे, एलिमिनेशन मेथड. नाउ फॉर एलिमिनेशन मेथड आपको क्या करना होगा? या तो पहले आप y को एलिमिनेट करो या तो x को एलिमिनेट करो. तो सपोज कि इक्वेशन 1 जो है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे देखो 3 2 जा 6y और यहाँ पे 2 3 जा 6y हो जाएगा. तो फिर इन दोनों का जैसे हम लीनियर इक्वेशन क्या सॉल्व कर देते, याद है ना? वो सब्ट्रैक्शन करते थे, बस वो सब करना है, नो चेंज. ओके दोस्तों, राइट. तो आप क्या करोगे? डूइंग दिस एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन विथ 2. सो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये 4x x सॉरी कैपिटल प्लस 6y इज इक्वल टू, अभी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 0. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ गया 9x प्लस 6y is equal to, now here you multiply by 3, so 3 2 जा 6 minus 6 minus 3 15, 5 3 जा 50. ठीक है, राइट. अभी याद है ना क्या करते थे हम? इसको साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, इससे ये हो जाएगा, ये प्लस 6y माइनस 6y कैंसल आउट. होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दोस्तों,
अभी आगे का काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। यहाँ पे 4x माइनस 9x क्या हो गया, माइनस 5x इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू, इसका सब्ट्रैक्शन करना है। देखो माइनस 4 माइनस 6 क्या होगा, -2, 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, 8 माइनस 3 हो जाएगा, सॉरी 8 अब ये भी प्लस, सॉरी ये 12 होगा, पार्डन। ये 12 कैसे आया, क्योंकि 6 और यहाँ हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, 4 माइनस 6 -2, 6 माइनस माइनस 6 so 12, 8 minus minus 3 so 11, and 0 minus 15 so minus 15. ओके, राइट। तो ये जो हमारा आंसर मिला वो -5x इज इक्वल टू आपको मिला। अभी इसमें से आपको क्या करना है, x को सब्जेक्ट बनाना होगा दोस्तों। आई होप यू कैन डू इट। कैसे बनाओगे, ये -5 सामने चला जाएगा, सामने जाएगा तो क्या, -1/5 यहाँ पे आएगा, और that -1/5 you have to multiply, scalar multiplication. So hope you can finish the sum ahead. होमवर्क में मैं यहाँ पे होमवर्क लिख रहा हूँ, इसका मतलब कि आगे का एक स्टेप जो है दोस्तों वो आप खुद फिनिश करोगे। Is that clear or not? Okay, right? So now I'm not, as I told you, I have discussed few of the sums from this exercise 3.2 based on the two properties. Which are the two properties? Matrix addition and the scalar multiplication by with a matrix. तो ये दो का हमने किया। So in the next lecture अभी हमारा क्या आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा दोस्तों, which is very 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 important। और उसी के ऊपर बेस बाकी के जितने भी 3.2 के सम्स है, hope that all will be covered in the next lecture. Be present, don't miss the lecture। next lecture को आप मिस मत करना। अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया दोस्तों तो समझ लो कि आपको मैट्रिक्स का कुछ आगे आने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर मैट्रिक्स सीखना है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना ही पड़ेगा, अदरवाइज forget about matrix. Okay, so we'll meet next time, next tomorrow. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.